સુરતની એસબીઆઈ બેંકમાં થયેલી લાખોની લૂંટની ઘટના બાદ હવે કર્મચારી સંગઠનો આક્રમક મૂડમાં જોવા મળી રહ્યા છે. સુરક્ષાના અભાવ અને વર્ષોથી લટકતી માંગણીઓને મુદ્દે ઓલ ઇન્ડિયા સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા સ્ટાફ ફેડરેશને હડતાલનું સત્ર ઉગામ્યું છે. સુરતની વરાછા બ્રાન્ચમાં ગત 27 તારીખે થયેલી લાખોની લૂંટની ઘટનાએ બ્રેકિંગ ક્ષેત્રમાં સુરક્ષાના દાવાઓની પોલ ખોલી નાખી છે. આ ઘટના બાદ ઓલ ઇન્ડિયા સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા સ્ટાફ ફેડરેશન મેદાનમાં આવ્યું છે. ફેડરેશને જાહેરાત કરી છે કે બેંક કર્મચારીઓની 16 મુખ્ય માંગણીઓ સંતોષવામાં નહીં આવે તો આગામી 25 અને 26 તારીખે સમગ્ર દેશમાં એસબીઆઈના કર્મચારીઓ કામકાજ ઠપ કરીને હડતાલ પર જશે. ફેડરેશનનો ગંભીર આક્ષેપ છે કે વર્ષ 2022 થી બેંકમાં સિક્યુરિટી ગાર્ડની ભરતી કરવામાં આવી નથી. સુરતની જે બ્રાન્ચમાં લૂંટ થઈ છે તે વરાછા બ્રાન્ચ ગોલ્ડ લોન ક્ષેત્રે બીજા નંબરની મોટી બ્રાન્ચ છે. છતાં ત્યાં શરૂઆતથી જ સિક્યુરિટી ગાર્ડનો અભાવ હતો. લૂંટારાઓએ પૂર્વ આયોજિત પ્લાનિંગ મુજબ આ લૂંટ કરી હતી, કારણ કે તેમને ખબર હતી કે બેંકમાં સિક્યુરિટી ગાર્ડ નથી. યુનિયનના જણાવ્યા અનુસાર પ્રાઇવેટ સિક્યુરિટીના ગાર્ડ નિયમોનું પાલન કરતા નથી અને તેઓ પૈસા મૂકવા માટે પણ બેંકની અંદર પ્રવેશતા નથી. આવી જ એક ઘટના ઝારખંડના બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રમાં બની હતી, જ્યાં 5 કરોડનું સોનું લૂંટાયું હતું. કર્મચારીઓ અને ગ્રાહકોની જાનમાલની સુરક્ષા માટે આર્મ્સ ગાર્ડ મેસેન્જરની તાત્કાલિક ભરતી કરવી અનિવાર્ય બની છે. સુરતમાં યોજાયેલી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં પંકજ કૌશિકે અન્ય પડતર માંગણીઓ પણ રજૂ કરી હતી, જેમાં 29 વર્ષથી મેસેન્જરની ભરતી ન થતા ક્લાર્ક સ્ટાફ પર કામનું ભારણ વધ્યું હોવાનું જણાવાયું હતું. આ ઉપરાંત પરમનન્ટ જોબનું આઉટસોર્સિંગ બંધ કરવા, એનપીએસ કર્મચારીઓને પેન્શન ફંડ મેનેજર બદલવા વિકલ્પ આપવા અને 2019 પછી જોડાયેલા કર્મચારીઓને ઇન્ટર સર્કલ ટ્રાન્સફર આપવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. કોલ સેલિંગના નામે વીમા પ્રોડક્ટ્સનું મિસ સેલિંગ બંધ કરવા અને મેડિકલ રિબર્સમેન્ટમાં 100% ખર્ચ આવરી લેવાની માંગ સાથે યુનિયન હવે લડાયક મૂડમાં છે. દ્વિપક્ષીય સમજૂતીઓનું ઉલ્લંઘન થતું હોવાથી હડતાલની ફરજ પડી હોવાનું યુનિયન જણાવી રહ્યું છે. જો આ માંગણીઓ નહીં સંતોષાય તો આગામી દિવસોમાં બેન્કિંગ સેવાઓ પર તેની મોટી અસર જોવા મળી શકે છે. यहाँ हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए स्वागत. जैसा कि मेरे लॉर्ड जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि स्टेट बैंक के अंदर हम आगे 25 और 26 को हड़ताल पे जा रहे हैं और हड़ताल पे जाने का कारण हमारा यही है कि हमने बड़ा प्रयास किया, बहुत समझाया, मैनेजमेंट को असली बात भी बताई, पर मैनेजमेंट काफ़ी इश्यूज पे बिल्कुल एडमेंट है, उनको रिजॉल्व नहीं करना चाहती. और आज हमारा सूरत में आने का जो सबसे बड़ा कारण है वो आपको पता ही है कि अभी सूरत में 27 तारीख को हमारे स्टेट बैंक की ब्रांच में आपने देखा कि एक डकैती हुई और उस डकैती में जो हमारा कहना है प्रबंधन से वो साबित होता है कि बैंक में, क्योंकि बैंक में कैश का लेन देन है, गोल्ड का लेन देन है, कस्टमर्स का अपना पैसा है, उसका लेन देन है, उसके लिए और स्टाफ वहाँ बैठता है, उसके लिए सुरक्षा मुहैया कराना हमारी सबसे पहली डिमांड है. और 2022 के बाद से हमारे बैंक प्रबंधन ने गार्ड का रिक्रूटमेंट नहीं किया और उसी के चलते आपने देखा कि किस तरह कुछ बदमाशों ने आके बस बंदूक की नोक पे बैंक में डकैती डाली, हमारे लोगों को बंधक बनाया, स्टाफ को बंधक बनाया और कस्टमर्स को भी बंधक बनाया. उनके भी हाथ टेप से बांधे, उन्हें बंदूक दिखाई, उन्हें ज़मीन पे बिठाया. और सबसे बड़ी बात यह है कि गार्ड उस ब्रांच में नहीं था. बैंक अपनी तरफ से, प्रबंधन अपनी तरफ से रिस्क मैट्रिक्स बताता है, ये बताता है कि हाई रिस्क है, ये लो रिस्क है. आप मुझे एक चीज़ बताइए, जिस भी शाखा में, जिस भी स्थान पे कैश का लेन देन हो, क्या वो लो रिस्क हो सकता है? जहाँ पर भी कैश, कस्टमर भी अपना कैश लेने आता है. हमें बहुत कस्टमर अब बोलते हैं कि हमें स्टेट बैंक में आने में डर लगता है, क्योंकि हमें अगर अपना कैश लेके आना है या बैंक से अपना कैश निकाल के ले जाना है या गोल्ड लोन के लिए आना है तो हम वहाँ पर असुरक्षित महसूस करते हैं. और हम ये डिमांड बैंक से बहुत पुरजोर रख रहे थे, पर बैंक इसके लिए तैयार नहीं है, कोई ना कोई बहाना मारता है. और इस सूरत में इस बैंक की शाखा में जो डकैती हुई उसमें जो सबसे बड़ी बात सामने आई है, जो आज हमने वहाँ पता किया जाके ब्रांच में, कि वो एक सुनियोजित लूट थी. उन लोगों को अच्छे से पता था कि बैंक में कैश बाहर से आता है, बैंक में जो
कंपनी कैश देती है वो कंपनी प्राइवेट है, उसमें बैंक का कोई भी स्टाफ नहीं है, बैंक का गार्ड नहीं है, और जो उन्होंने अपने प्राइवेट गार्ड रखे भी हैं वो भी नियम का पालन नहीं करते। वो ब्रांच में कैश के साथ ऊपर तक भी नहीं आते, और उन्हें ये भी पता था, उन्होंने वहाँ पर 40 मिनट इंतज़ार किया और उन्हें पता था कि ये कैश की वैन कब यहाँ पहुँचेगी, कौन सी कंपनी की वैन पहुँचेगी, और उन्होंने उस तरह से लूटपाट की। साथियों, हमारा आपसे ये रिक्वेस्ट है, हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से बात प्रबंधक तक पहुँचे और गार्ड की रिक्रूटमेंट हो, स्टाफ कस्टमर सब सुरक्षित महसूस करें, अपना लेन देन रोज का अच्छे से करें। हमारी इसके आगे एक डिमांड है मैसेंजर रिक्रूटमेंट। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ मैसेंजर्स एक आम ऑफिस में मैसेंजर्स की तरह काम नहीं करते। उनका सिर्फ काम ये नहीं होता कि चाय पिलानी है या फाइल इधर से उधर देनी है। बैंक ने अपने काम को, बैंक ने अपने पूरे काम को 3 वर्गों में बांटा हुआ है। एक काम ऑफिसर्स करते हैं, उसके बाद क्लरिकल स्टाफ करता है दूसरा काम, और तीसरा काम उन्होंने मैसेंजर्स का भी बांटा हुआ है, जिसमें कैश की बंडलिंग, कैश की सॉर्टिंग, वोचर्स की सॉर्टिंग, वोचर्स का देना, उनको अच्छे से लगाना, ड्रॉप बॉक्स से चेक निकालना, बहुत सारे काम। और सारे जो हमारे वोचर्स हैं एक सीट से दूसरी सीट देना। पर आप भी ये बात सुन के हैरान होंगे, जैसे हम हैरान होते हैं, कि बैंक ने क्लरिकल भर्ती तो की, ऑफिसर भर्ती तो की, पर मैसेंजर की, सबऑर्डिनेट स्टाफ की भर्ती पिछले 29 साल से नहीं करी, जिससे हमारी रोज का काम बड़ा इफेक्ट हो रहा है। हमारे को जो हम अपना अच्छा समय कस्टमर सर्विस के लिए लगाएं, वो हमें मैसेंजर्स का काम पूरा करने में लगाना पड़ता है। देश का सबसे बड़ा बैंक, सबसे बड़ा मुनाफा कमाने वाला संस्था अपने लोगों को रिक्रूटमेंट नहीं देगी, आप मुझे बताइए, तो इस देश में हमारे लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को रिक्रूटमेंट कौन देगा, जॉब्स कौन देगा? और उससे ये प्रबंधन को भी पता है कि इफेक्ट होता है हमारी रोज की सर्विस, पर इस पे वो ध्यान नहीं दे रहे। हम इसके लिए भी, ये हमारा मेन मुद्दा है। और हमारे बाकी सारे बहुत सारे मुद्दे हैं कि स्टेट बैंक के अंदर हम आगे 25 और 26 को हड़ताल पे जा रहे हैं, और हड़ताल पे जाने का कारण हमारा यही है कि हमने बड़ा प्रयास किया, बहुत समझाया, मैनेजमेंट को असली बात भी बताई, पर मैनेजमेंट काफ़ी इश्यूज पे बिल्कुल एडमेंट है, उनको रिजॉल्व नहीं करना चाहती। और आज हमारा सूरत में आने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो आपको पता ही है कि अभी सूरत में 27 तारीख को हमारे स्टेट बैंक की ब्रांच में आपने देखा कि एक डकैती हुई, और उस डकैती में जो हमारा कहना है प्रबंधन से, वो साबित होता है कि बैंक में, क्योंकि बैंक में कैश का लेन देन है, गोल्ड का लेन देन है, कस्टमर्स का अपना पैसा है, उसका लेन देन है, उसके लिए, और स्टाफ वहाँ बैठता है, उसके लिए सुरक्षा मुहैया कराना हमारी सबसे पहली डिमांड है। और 2022 के बाद से हमारे बैंक प्रबंधन ने गार्ड का रिक्रूटमेंट नहीं किया, और उसी के चलते आपने देखा कि किस तरह कुछ बदमाशों ने आके बंदूक की नोक पे बैंक में डकैती डाली, हमारे लोगों को बंधक बनाया, स्टाफ को बंधक बनाया, और कस्टमर्स को भी बंधक बनाया। उनके भी हाथ टेप से बांधे, उन्हें बंदूक दिखाई, उन्हें ज़मीन पे बिठाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि गार्ड उस ब्रांच में नहीं था। बैंक अपनी तरफ से, प्रबंधन अपनी तरफ से रिस्क मैट्रिक्स बताता है, ये बताता है कि हाई रिस्क है, ये लो रिस्क है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जिस भी शाखा में, जिस भी स्थान पे कैश का लेन देन हो, क्या वो लो रिस्क हो सकता है? जहाँ पर भी कैश, कस्टमर भी अपना कैश लेने आता है, हमें बहुत कस्टमर अब बोलते हैं कि हमें स्टेट बैंक में आने में डर लगता है, क्योंकि हमें अगर अपना कैश लेके आना है, या बैंक से अपना कैश निकाल के ले जाना है, या गोल्ड लोन के लिए आना है,
तो हम वहाँ पर असुरक्षित महसूस करते हैं। और हम ये डिमांड बैंक से बहुत पुरजोर रख रहे थे, पर बैंक इसके लिए तैयार नहीं है, कोई ना कोई बहाना मारता है। और इस सूरत में इस बैंक की शाखा में जो डकैती हुई, उसमें जो सबसे बड़ी बात सामने आई है, जो आज हमने वहाँ पता किया जाके ब्रांच में, कि वो एक सुनियोजित लूट थी। उन लोगों को अच्छे से पता था कि बैंक में कैश बाहर से आता है, बैंक में जो कंपनी कैश देती है वो कंपनी प्राइवेट है, उसमें बैंक का कोई भी स्टाफ नहीं है, बैंक का गार्ड नहीं है, और जो उन्होंने अपने प्राइवेट गार्ड रखे भी हैं वो भी नियम का पालन नहीं करते। वो ब्रांच में कैश के साथ ऊपर तक भी नहीं आते, और उन्हें ये भी पता था, उन्होंने वहाँ पर 40 मिनट इंतज़ार किया, और उन्हें पता था कि ये कैश की वैन कब यहाँ पहुँचेगी, कौन सी कंपनी की वैन पहुँचेगी, और उन्होंने उस तरह से लूटपाट की। साथियों, हमारा आपसे ये रिक्वेस्ट है, हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से बात प्रबंधक तक पहुँचे और गार्ड की रिक्रूटमेंट हो, स्टाफ कस्टमर सब सुरक्षित महसूस करें, अपना लेन देन रोज का अच्छे से करें। हमारी इसके आगे एक डिमांड है मैसेंजर रिक्रूटमेंट। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ मैसेंजर्स एक आम ऑफिस में मैसेंजर्स की तरह काम नहीं करते। उनका सिर्फ काम ये नहीं होता कि चाय पिलानी है या फाइल इधर से उधर देनी है। बैंक ने अपने काम को, बैंक ने अपने पूरे काम को 3 वर्गों में बांटा हुआ है। एक काम ऑफिसर्स करते हैं, उसके बाद क्लरिकल स्टाफ करता है दूसरा काम, और तीसरा काम उन्होंने मैसेंजर्स का भी बांटा हुआ है, जिसमें कैश की बंडलिंग, कैश की सॉर्टिंग, वोचर्स की सॉर्टिंग, वोचर्स को देना, उनको अच्छे से लगाना, ड्रॉप बॉक्स से चेक निकालना, बहुत सारे काम, और सारे जो हमारे वोचर्स हैं एक सीट से दूसरी सीट देना। पर आप भी ये बात सुन के हैरान होंगे, जैसे हम हैरान होते हैं, कि बैंक ने क्लरिकल भर्ती तो की, ऑफिसर भर्ती तो की, पर मैसेंजर की, सबऑर्डिनेट स्टाफ की भर्ती पिछले 29 साल से नहीं करी, जिससे हमारी रोज का काम बड़ा इफेक्ट हो रहा है। हमारे को जो हम अपना अच्छा समय कस्टमर सर्विस के लिए लगाएं, वो हमें मैसेंजर्स का काम पूरा करने में लगाना पड़ता है। देश का सबसे बड़ा बैंक, सबसे बड़ा मुनाफा कमाने वाला संस्था अपने लोगों को रिक्रूटमेंट नहीं देगी, आप मुझे बताइए, तो इस देश में हमारे लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को रिक्रूटमेंट कौन देगा, जॉब्स कौन देगा? और उससे ये प्रबंधन को भी पता है कि इफेक्ट होता है हमारी रोज की सर्विस, पर इस पे वो ध्यान नहीं दे रहे। हम इसके लिए भी, ये हमारा मेन मुद्दा है। और हमारे बाकी सारे बहुत सारे मुद्दे हैं